Okay, so are you ready? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Question number 1. Dash dash is the smallest functional unit of living organism. Cell. 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 Yeah, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट क्या होता है? सेल. ग्रुप ऑफ सेल. Group of cell that is called Tissue. 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 very good. Now, group of tissue that is called Organ. okay, very good. Then question number 4, a group of organ. सभी organ का System. organ system. Okay. Then dash dash is an example of internal organ: lung, ear, nose, hand. Lung. Very good. Very good. Question number 6. Okay, question number 6. Dash dash is an example of internal organ: heart, kidney, small intestine, and all of these. All of these. All of this. Yes, very good. Then dash dash organ is protected inside the skull. Brain. Very good. Then question number 8. Dash dash organ is located on the right side of abdomen. Abdomen means stomach भी बोल सकते हैं, कोई problem. Okay. So dash may I repeat again. Dash dash organ is located on the right side of the abdomen. Your answer? Kidney. Liver. 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 Okay, your answer is liver. Then dash dash organ is located in the lower back. Back के lower side में कौन सा organ located होता है? Kidney. Spinal cord. Kidney. Kidney. Correct answer. Kidney. Okay. Question number 10. Dash dash organ is located beneath the stomach. Stomach के नीचे कौन सा organ होता है? Liver. Small intestine. Small intestine. Liver तो stomach के ऊपर होता है बेटा. ओके, आप डाइजेस्ट देखो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की. मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे कलर इमेजेस शेयर कर दिए हैं. स्टमक के एग्जैक्ट नीचे कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. डैश डैश ऑर्गन इज लोकेटेड around the small intestine. Small intestine. Yes. Your answer is large intestine. Question number 12. Dash dash organ is protected inside the chest cavity. Option is heart, lung, A and B, and liver. Both A and B. चेस्ट कैविटी होती ना, उसमें कौन से ऑर्गन होते हैं? हार्ट एंड लंग्स. ओके, हार्ट एंड लंग्स. सो बोथ A and B is the correct answer. Okay, now गाड़ी से चलने तर. Okay, question number 13. Dash dash organ filter waste product from the blood. Kidney. Yes. Okay. Okay, kidney dash dash organ filter waste product from the blood. Options are lungs, liver, stomach, kidney. Correct answer is kidney. Okay, correct answer is kidney. Now, next question. Dash dash organ is a long and coily
Small intestine, large intestine, stomach, Small brain. intestine. Small intestine. Okay. So your correct answer is small intestine. Okay. Small intestine is the organ, is a long and coil. Then next question. Dash dash is the largest internal organ and it is reddish brown in color. Liver. Liver. Okay. Liver is the largest internal organ. Okay. Can I ask again one question? Yes. Okay. Okay. Dash dash is also largest external organ. Skin. Yes, very good. देखो स्किन भी लार्जेस्ट ऑर्गन है बट स्किन कैसा है एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लिवर इज ऑल्सो लार्जेस्ट ऑर्गन बट दोनों में डिफरेंस क्या है लिवर इज इंटरनल स्किन इज एक्सटर्नल ओके बोथ आर लार्जेस्ट ऑर्गन दोनों लार्जेस्ट ऑर्गन है बट क्या डिफरेंस है स्किन हमारे बॉडी के कहाँ पे होती है आउटसाइड ओके दैट इज external largest organ and liver internal largest. Okay. Now next question. Brain is protected in dash dash cavity, vertebral cavity, abdominal cavity, cavity. None of these. Cranial cavity. Okay. Cranial cavity. It is also called brain box and it is also called cranium box. ओके cranium box भी बोलते हैं brain box भी एक cranial cavity भी बोलते हैं now dash dash cavity is the spinal cord okay Cavity. Vertebral cavity. yes. Okay spinal cord okay spinal cord is protected in the vertebral cavity. Now next question. Dash dash cavity contain heart and lungs. Okay, next question is dash dash Thoracic cavity. Good evening, Okay. ma'am. Yes, beta. Good evening. So answer is thoracic cavity. Okay, thoracic cavity contain heart and lungs. Next question. Dash dash is the main organ of respiratory system. Lungs. 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 Yes. Okay. Lungs. Okay. Lung is the organ of respiratory system. Okay. So, along with the nose, sorry, lung, respiratory system starting from the nose. Then next one, windpipe. Windpipe is also called Trachea. trachea. That trachea is divided into two parts. That is called Bronchi. bronchia. It having many branches. That is called Bronchioles. bronchioles. And at the ending of bronchioles, there are air sacs. Alveoli. Okay. And all are present in the Lungs. and below Yes, the teacher. below the lung there is Diaphragm. diaphragm. It is the muscular sheath. When we inhale, diaphragm goes downwards. Down. When we exhale, diaphragm goes upward. Yes. And continue up and down movement of diaphragm. So those are about the organ of respiratory system. Now, question number 20. At the end of bronchi, the air sac like structure that is called Alveoli. yes. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, how can I check my mark in that exam?
Means online exam that you send me, that send us that. How can I see my questions what are wrong? एक्चुअली ना उस दिन उन्होंने टेस्ट सबमिशन करने के बाद 2 आवर के बाद आपको ऐप डाउनलोड करके व्यू ऑल करना है। View ऐप all. डाउनलोड, ओके, व्यू ऑल, व्यू द सॉल्यूशन ऐसा आता है। एंड देन हर क्वेश्चन पे आपके रॉन्ग, राइट, करेक्ट, रॉन्ग जो कि भी है, करेक्ट रॉन्ग सभी दिखते हैं व्यू सॉल्यूशन करने के बाद। अच्छा टीचर मैम मैंने विच वो नहीं तो आप रीअटेम्प्ट करके देखो फिर से व्यू सॉल्यूशन आता है क्या। टीचर बहुत बार किया वो उधर आया ही नहीं। और मैंने ऐप ओके भी ठीक है। डाउनलोड किया, ऐप भी डाउनलोड किया मैंने। yes I can check my marks Okay, okay. I checked the app setting. Firstly, today we discuss. That's why we discuss the answers. तुम्हें तो पता होगा ना तुमने क्या आंसर को टिक किया है। यस टीचर। That's why we are discussing. आप पेपर आपने ही सॉल्व किया है ना, तो आपको पता है आपने किसको टिक किया है। यस। So I am telling all questions answer. आपको थोड़ा सा गेसिंग आ जाएगा आपके कौन से रॉन्ग हुए। यस। ma'am which app we have to download 10 classes, 10 classes। ma'am is it available in Play Store हाँ यस बेटा। यस। okay ma'am So taking oxygen into the body, that is called inhalation inhalation, and giving out carbon dioxide outside the body, that is exhale exhalation. Okay, that is called exhalation. Now, an exchange of gases, that is oxygen, carbon dioxide, takes place in which part of respiratory system? Nose, lungs, alveoli and diaphragm. किसमें exchange of gases होता है? alveoli Okay, exchange of gases takes place. Alveoli. Atharva Kadam, you have called me today? Atharva Kadam, na? Are you Atharva Kadam? yes ma'am You have called me today? yes miss yesterday your class was not there attended Yes, yes. Okay. Now, from the next week, I am taking 2 classes in a week. Okay. Next week से हमारा 2 क्लास शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। मैं ग्रुप पे कौन कौन से डेज को लेने वाली हूँ ग्रुप पे डिस्प्ले करूंगी। ओके। सो अवर क्लास कंपल्सरी 2 days इन अ वीक। एंड जब अक्टूबर में आपकी एग्जाम आने वाली है, सितंबर अक्टूबर, एट दैट टाइम द अक्टूबर मंथ आई एम टेकिंग कंप्लीट मंथ डेली क्लास वाले अक्टूबर में मंडे टू सैटरडे। इवन इन द सितंबर आल्सो आई एम टेकिंग, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक देयर विल बी 2 classes इन अ वीक। के ट्यूसडे एंड थर्सडे ऐसा हम प्लान करने वाले हैं। ओके। एंड यस। सेंडिंग द लिस्ट ऑफ बुक्स। ओके, आपको बुक्स भी परचेस कर लेना है। You can purchase the online also. If available in your city, go to bookstore and you have to purchase the 2 or 3 books. I am sending the list of books. Okay, एक क्वेश्चन बैंक है, एक बुक है, एक स्टेट बोर्ड का बुक है और एक सीबीएसई का बुक है। ऐसे 4 बुक्स आपको परचेज करना है। ओके। टीचर टीचर when you are taking robotics class? एवरी मंथ 1 क्लास। ओके। हमारे Robotics. अक्टूबर, यस, अक्टूबर तक क्लासेस रहने वाले हैं। हाँ। एवरी लास्ट, ओके, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। ओके। saturday जो 4th सैटरडे आता है ना एवरी can मंथ, you take उस दिन Wednesday and Thursday ओके। विच क्लास? वेडनेसडे, थर्सडे? Wednesday and Thursday the Homi Baba नो बेटा, नॉट कॉन्सिक्वेंटली। एक क्लास यदि आपका ट्यूसडे को होगा तो बीच में 2 days गैप रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी उस चैप्टर की। ओके, नॉट कंटिन्यूअसली। ओके, फ्राइडे सैटरडे ऐसे क्लास कभी नहीं होगी। बीच में 2 days कंपल्सरी, 2 नहीं तो 3 days गैप रहने वाला। बिकॉज सपोज एक
एक क्लास में हाफ चैप्टर आपको सिखा दिया तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा ना वो चैप्टर. लर्निंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, वो गैप रहेगा. ओके. मैम अगली वीक से हमारी क्लास शुरू होने वाली है. Mute yourself, all student. Teacher, Question number 20. teacher, Yes. tomorrow also you are taking class? No, beta. Tomorrow there will be holiday. Okay. Okay. Tomorrow there will be holiday, and in next week we follow the 2 classes in a week. वो जो अपना शेड्यूल है वो रहेगा. वीक में 2 क्लासेस होने वाले हैं. ओके. बुक्स की लिस्ट मैं शेयर करने वाली हूँ. आपको बुक्स परचेस कर लेना है. टुडे आई शेयर द बुक लिस्ट. ओके. मॅम यस. आपण जेव्हा बोट वाचतो अशी तेव्हा आपण कुठून येतो? त्याच्यामध्ये ना एक लिक्विड असतं. ओके. सायनोइड टाईपचं लिक्विड असतं. ते जरा मूव्ह होतो त्यामुळे आणि ते बोन्स एकमेकांवर हे होतात ना, स्लाइड होतात आणि ते लिक्विड मूव्ह होतो म्हणून आवाज येतो. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 24. इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर. देखो आप उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. So Cilia. structure, 1 minute beta, is called lung, nasal cavity, trachea or cilia. Cilia beta, not Kanish. Cilia. Okay. सबको समझ में आ गया. हमारे नोज में जो हेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिया. Cilia. May I repeat again? Okay. Inner lining of respiratory organ have hair-like structure, and that hair-like structure is called Cilia. Cilia. now very good. Okay. Dash dash is the process of digestion start from dash dash organ. Mouth. Yes, question is very easy. The process of digestion begins from the mouth. Okay, in the mouth, teeth to cut down the food. Saliva, mix the salivary gland, mix the saliva. Okay, then tongue identify the taste. Now, food particle is converted into soft, moist ball, and that ball we can easily swallow, and that ball is called bolus. Okay, soft moist ball is swallowed. That one is called bolus. Digest is the length of an adult human being small intestine. 7 meters. 7.5. Yes, कोई 7 दिया है, कोई बुक में 7.5 भी दिया है. ओके. 7 मीटर स्टेट बोर्ड के बुक में कोई कोई 7.5 दिया. ओके. सो 7 then okay, the length of in adult being 1.5 meter. 1.5 meter. 1.5 meter. very good. Now next question. Dash dash is the organs in the human body. Enamel. Enamel. कहाँ पे हो? Where animal is present? Outer cover of teeth. Outer cover of teeth. Teeth. There is dentine is present. Below that there is a soft pulp is present. Okay, so enamel. Then dash is the main organ of circulatory system. Heart. Heart is the main organ of circulatory system. Then dash the network of tube that carry
the blood, that tube is Blood called vessel. Blood vessels. Blood vessels. okay. Blood vessels. Blood vessels. Okay, how many Yes, blood vessels. ब्लड वेसल के भी 3 टाइप है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। Capillaries. के 3 टाइप है, that is arteries, then next one veins, and then next one that is Capillaries. is. Most thinnest vein in our body is capillaries. Okay. Bloodless is the function of heart to pump the blood, to digest the food, to remove blood. To pump the blood. Pump the blood. blood. So, to pump the blood. So, for pumping the blood in the heart, there is a contraction and expansion. The heart is expand and contract. Contract, expand. Okay? Now, next question. Many substances which are circulated in our body, that substance first mix with digest and then circulated to our body part. Blood. हमारे body सुन लो अच्छे से, हमारे बॉडी में जो भी सर्कुलेट होता है, एनीथिंग दैट फर्स्ट मिक्स विद द ब्लड, it is circulated all body. Okay, then it is circulated to all body parts. Now, digest is main organ of nervous system. Brain. Okay, brain. The main organ of nervous system. Now, next one, there is a network of dash that connect brain and all body parts. Nerves. Okay. In our whole body, there is a network of nerves, and this nerve connect brain and all body parts. Now, dash and dash make our nervous system, brain, nerve, or both A and B. Both Brain, okay, brain and nerve make our nervous system. Now, dash is the main function of nervous system, to control all system, to Yes, ma'am. A and B. Both and B. Very good. Now, respiration takes place because of up and down movement of which organ? Diaphragm. Okay. Okay. The air which we inhale through the nose passes into the dash pipe. Windpipe. Wind pipe is also called trachea. Okay. The last question. Why do we sometimes suddenly enter into the windpipe? Then both A and B and Enter into windpipe. yeah. Yes. Enter into windpipe, teacher. Yes. Okay. So those are the answers of these questions. Okay. Yes. जो मैंने सेंड की थी, ये सभी आंसर्स मैंने डिस्कस कर लिए. ओके. So today I'm going to start new topic. Is it okay about the test? Yes, teacher. Constituents of food you are starting. Teacher, your voice is breaking. Teacher, your voice is breaking. This is not clear. Okay.
A constituent of food topic I have already taken. Yes. Okay. So today I'm taking the new chapter, that is method of preserving of food. Okay. Method of preserving the food. Now, okay, Tanishka? Yes, teacher. Okay. Vajra, actually, I am out of Buldhana, okay, out of my city. Okay, maybe here net issue. I am using the mobile net. Okay, मैं एक्चुअली आउट ऑफ सिटी हूँ. ओके, तो यहाँ पे मे भी थोड़ा सा नेट का इशू आ सकता है. मेरे घर पे वाईफाई है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, बट यहाँ पे ओके. Okay. Yes, teacher. ओके, Yes. 1 minute. Yes, teacher. Okay, now okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, miss. Yes. Okay, so can I start now? Next topic. Okay, just show me your thumb if you are not able to unmute. Okay, I think unmute नहीं हो रहे ना. Okay, so I am starting a new topic, that is method of preserving the food. Okay, so first one, all of you eat the food. Yes. Okay, why we eat the food? Food gives us. Yes. Okay, food gives. You can type the message. Food gives us the energy. Yes, Prabodh. I think Prabodh have. Prabodh, raise your hand. I would like to see you on your camera. Prabodh, on your camera. I think Prabodh have 40 out of 40 marks. Yes, na Prabodh? Okay, बहुत से बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं टेस्ट में. प्रबोध के 40 आउट ऑफ 40 है. 38 बहुत से स्टूडेंट को है. 37 भी है. 35 है. 30 है. 25 है. नो प्रॉब्लम. ओके, कोई तो एक स्टूडेंट के आए हैं 40 आउट ऑफ 40. Pradnesh, I think. Yes. Pradnesh, I have seen. Pradnesh, very good beta. Congratulations. All of you, सबको congratulations. Okay, you have done the good job. आपके कहाँ पे मिस्टेक हो गए हैं एक बार फिर से देख लेना है. लगे तो टेस्ट और एक बार रीअटेम्प्ट कर लो. ओके, टेस्ट यू कैन गिव मेनी टाइम. रीअटेम्प्ट कर लेना है आपको टेस्ट. सो नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिजर्विंग द फूड. I'm going to start new topic, that is method of preserving the food. So preserving means store the food. Okay, store the food and that food remain that food remain fresh many time. That is called preserving. Store करने. Okay, store करना. जो food है, food को store करना and that food remain fresh throughout the year many time. That is called preserving. Okay, very easy meaning क्या है? फूड को स्टोर करना एंड वो फूड मेनी डेज स्टोर होना चाहिए विदाउट स्पॉइल. ओके, देखो कोई कोई फूड आइटम 1 और 2 डेज में ही स्पॉइल हो जाते हैं. अभी समर सीजन है, सपोज आपके मम्मी ने इवनिंग को कुछ तो करी बनाई, नेक्स्ट डे इवनिंग तक वो करी अच्छी रहती है क्या? नो. ओके, सो हाउ वी अंडरस्टैंड दैट द फूड इज स्पॉइल? कैसे समझ में आता है कि वो फूड अच्छा नहीं है, खराब हो गया? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. कैसे समझ में आता है हमें? हाउ वी आइडेंटिफाई? नो, आई एम नॉट आस्किंग द मेथड बेटा. प्रसाद, योर आंसर इज करेक्ट. स्मेल. ओके, क्या होता है? आपके मम्मी ने सपोज आज इवनिंग में कढ़ी बनाई और नहीं तो कुछ भी बनाया, मैंगो जूस बनाया, तो 2-3 डेज के बाद फ्रीज में नहीं रखना है उसको, ऊपर ही रखना है रूम टेम्परेचर में.
2-3 डेज के बाद मैंगो जूस फ्रेश रहता है? नो। एंड आप तो मैंगो फ्रूटी पीते हैं, वो तो साल भर फ्रेश रहती है। व्हाई? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. यस. वज्र, वेरी गुड बेटा. स्मेल एंड अपीयरेंस. ओके. आई हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन. आपके मम्मी ने सपोज आज मैंगो जूस बनाया. आफ्टर 2 or 3 डेज वो मैंगो जूस मम्मी ने फ्रीज में नहीं रखा है. ओके. 3 डेज के बाद वो मैंगो जूस आप खा सकते हैं? यस, नो. ओके. एंड सेम वैसे ही फ्रूटी तो साल भर शॉपकीपर स्टोर करके रखते हैं. ओके. फ्रूटी पीते हैं सब लोग. फ्रूटी भी क्या है? मैंगो जूस ही है, समझ लो मैंगो जूस ही है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? मम्मी का मैंगो जूस 1 डेज में ही खराब हो जाता है. ओके. एंड बाहर के आप जो फ्रूटी पीते हो, माजा पीते हो, वो तो साल भर स्टोर होता है. व्हाई? Because they are using the different method of preservation. First of all, you have to learn the definition of preservation. Okay, to keep the food, in good condition for many time. Okay, कोई फूड है उसको गुड कंडीशन में रखना है फॉर मेनी टाइम, मंथ, ईयर, and remain that food item remain fit to eat, don't spoil. That one is called preservation. Okay. And there are the different method of preserving the food. Okay. Yes, there are different methods for preserving the foods. So in your home your mother store the food grain. Okay, आपके घर में आपकी मम्मी फूड ग्रेन स्टोर करती होंगी. व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, पल्सेस थ्रू आउट द ईयर स्टोर करती है मम्मी. तो उसमें भी स्मॉल इंसेक्ट जाते हैं. तो कैसे मम्मी स्टोर करती है कंप्लीट 1 ईयर कि व्हीट अच्छा होना चाहिए, रहना चाहिए साल भर, राइस साल भर अच्छा रहना चाहिए. ओके. पल्सेस साल भर अच्छे रहने चाहिए. हैव यू सीन मम्मी क्या करती है? व्हीट, राइस, जवार, बाजरा कंप्लीट होल ईयर डायरेक्टली मेडिसिन. वज्रा, डायरेक्टली मेडिसिन. एडिंग द पाउडर. ओके, गुड आंसर. ड्राई नीम लीव्स, वेरी गुड आंसर. ओके. ओके. Separating the food from insect. Okay. Dry tomatoes. Okay. Again. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर में जो व्हीट आता है, जवार आता है, बाजरा आता है, राइस आता है, जब फार्मर लोग ओके फार्म में से उसको लाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है पता है आपको? स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. तो बेस्ट वे उसको क्या करते हैं? हीट कर, सन ड्राइंग. सभी फूड ग्रेन आपकी मम्मी स्टोर करने से पहले क्या करती है? ऑब्जर्व करो, मम्मी को पूछो आज. सन ड्राइंग. ओके. वो जो व्हीट है उनको सनलाइट में स्प्रेड कर देते हैं. ओके. तो सनलाइट में स्प्रेड करने से क्या होता है? उसमें जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है तो वाटर इवोपरेट हो जाए, वाटर निकल जाता है. एंड हमें जो ग्रेन्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? ड्राई. ओके. वो ग्रेन कैसे हो जाते हैं सनलाइट में? ड्राई. सो विच वन इज द फर्स्ट मेथड? सनलाइट. ड्राइंग. ओके. ड्राइंग द जो भी आपके घर में व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, कॉर्न. ओके. ड्राइंग इज द फर्स्ट वेरी इजी सिंपल मेथड. यस, यू आर गिविंग मी द लॉट्स ऑफ आंसर. इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. आप लोग ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे 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 आंसर दे रहे हैं मुझे. बट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मेथड, सबसे इजी मेथड कौन सी? सपोज मेरे घर पे अभी हमने व्हीट लाया है तो हम उसको क्या करेंगे? पहले सनलाइट में टेरेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं. बराबर है ना? सो सबसे इजी मेथड कौन सी है? सन ड्राइंग. क्लियर? Is it okay, students? Understand why I have told? Because this is also scientific method.
सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में क्या होता है, ग्रेन में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है सभी वाटर निकल जाता है एंड ग्रेन ड्राई हो जाता है एंड ड्राई सब्सटेंस स्पॉइल नहीं होते। ओके जो भी ड्राई सब्सटेंस है वो स्पॉइल नहीं होते। सो फॉर द फूड आइटम लाइक व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, कॉर्न, ओके, sun drying method is used. Now there are the different method, and for that different method there are different food item and different method. Okay, so suppose I have milk. Okay, I have milk. Now summer days मैंने मिल्क लिया, उसको हीट नहीं किया, उसको मैंने सिर्फ कहीं पे तो साइड में रख दिया। 2-3 डेज मिल्क फ्रेश रहेगा? नो। ओके, आफ्टर 2-3 डेज मिल्क में क्या क्या चेंज हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या क्या चेंज हो जाएंगे? दैट मिल्क नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और यूजिंग। कलर कलर चेंज हो जाता है, स्मेल, ओके, बैड स्मेल आता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। मीन्स दैट फूड एटम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं। सो वी से दैट मिल्क इज नॉट गुड फॉर अस बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी टेस्ट चेंज हो गई, उसका टेक्सचर चेंज हो गया। हो जाता है ना उसमें, यस, बैड बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं। देन मिल्क को क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। ओके, मिल्क को गैस के ऊपर बॉईल करते हैं, बॉइलिंग, पता है ना, बॉइलिंग। मिल्क को कौन सी मेथड यूज करते हैं? द बॉइलिंग मेथड। ओके, सो food stuff are boiled, and when we boil the milk then that microorganism are die. ओके, जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यस, दैट मेथड इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। मिल्क इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and then that milk is cooled down and that method is called pasteurization. Okay, understand? So milk curry. ओके, सपोज मम्मी ने मॉर्निंग में कुछ तो करी बनाई है तो इवनिंग को मम्मी भी उसको क्या करती है? बॉईल करती है। यस, लुई पॉस्चर, वेरी गुड बेटा। तो इवनिंग को उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। सो बॉइलिंग, जनरली बॉइलिंग मिल्क के लिए यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। ओके, milk is boiled to kill the microorganism and milk remain preserved. मिल्क को फ्रेश रखा जा सकता है, प्रिजर्व रखा जा सकता है। बाय विच मेथड? वेरी सिंपल मेथड, नेम ऑफ द मेथड इज बॉइलिंग। इसके पहली मेथड मैंने आपको कौन सी सिखाई? ड्राइंग। ओके, सबसे पहली मेथड मैंने आपको कौन सी सिखाई? ड्राइंग। तो ड्राइंग सिर्फ फूड ग्रेन के लिए यूज करते हैं? नो, पापड़, कुरडई, सांगे, व्हीट, दाल। ओके, so first method of preserving, that is drying. First method of preservation, that is the drying, and this drying method is used to preserve the wheat, jawar, bajra, corn, and also for the papad, kudai, sange, like this. Okay, जो भी समर में आपकी मम्मी कुछ बनाती होंगी तो उसको क्या करते हैं? सन ड्राई। So first method is drying. Then next method, that is boiling. Why milk is boiled? Because to destroy the microorganism and to preserve the food atom. Okay, वो जो फूड आइटम है उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मीन्स टू कीप द फूड आइटम रिमेन फ्रेश फॉर मेनी टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। ओके, जो फूड आइटम है उसको मुझे
लॉन्ग डेज के लिए फ्रेश रखना है विदाउट स्पॉइलिंग. ओके, विदाउट स्पॉइलिंग and to killing the germs. That one is called method of preservation. Now, some food item we preserve by cooling. Yes, okay. Some food item we preserve by cooling. So, we store that food atom to low temperature, and this low temperature, in this low temperature there is no growth of microorganism and food atom remain fresh. ओके, अब सब आपके घर का फ्रीज ओपन करके देखो, फ्रीज में कितने चीजें स्टोर करते हैं. ओके, प्रिजर्व करते हैं. ओके, बहुत से चीजें हैं. सपोज मैंने ब्रेड लाई, तो ब्रेड बाहर, फ्रीज के बाहर 10 डेज ब्रेड फ्रेश रह सकते हैं. 10-15 डेज तो ब्रेड, और 10 डेज के बाद हम वो ब्रेड खा सकते हैं. नो, इन दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएंगी और ब्रेड स्पॉइल हो जाएंगे. एंड when we eat that spoiled bread, we have the infections. ओके, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है. नाउ इन द फ्रीज, विच फूड आइटम वी स्टोर? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. आपके फ्रीज में क्या क्या स्टोर करते हैं? ओके, टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. Because in the freeze there is a low temperature. Vegetables, very good beta. पनीर, ओके. मिल्क, ओके. आपके घर में फ्रीज में क्या क्या स्टोर होता है? आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, ओके. फ्रूट्स, वेजिटेबल, कर्ड, मिल्क, आइसक्रीम, एग. एग भी रखते होंगे कोई लोग. लस्सी, ओके. जिंजर, ओके. वेजिटेबल्स में आ जाता है जिंजर. ओके, एग. ओके, तो फ्रीज में ये जो चीजें हैं, फ्रीज में रखने से क्या होता है? व्हाई वी आर स्टोरिंग इन द फ्रीज? व्हाई वी आर स्टोरिंग इन द फ्रीज? सभी चीजों को फ्रीज के बाहर रख दो एंड 10 डेज के बाद हमें खाना है. ओके, जूस, ओके ओके. सो व्हाई वी आर स्टोरिंग इन द फ्रीज? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. टू प्रिजर्व, ओके, वेरी गुड. ओके, व्हाई वी स्टोर द थिंग्स इन द रेफ्रिजरेटर? Not spoil, okay. To be keeping it fresh, okay, very good. Okay, so in short, to preserve the food atom. Okay, सभी फूड आइटम को हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व मीन्स स्टोर द फूड आइटम फॉर मेनी टाइम. Okay, yes, to remain the fresh, to preserve, to keep the food item many days, and to spoil the food item. So, second method is the cooling, and in the refrigerator, temperature is very low, and to such low temperature, there is a no growth of microorganism. क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड इन सच लो टेम्परेचर देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैन ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. ओके, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज में कितना टेम्परेचर होता है मैक्सिमम? ओके, नोट डाउन कर लो. ओके, how many temperature are present in the freeze and refrigerator? ओके, मैंने तो बोला वेरी लो टेम्परेचर होता है, बट कितना लो मतलब कितना लो? ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स. नॉट नाउ, पलक. ओके, थोड़ा सा डिस्कस करके आंसर बताओ. लो टेम्परेचर होता है फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में भी. सो लो मीन्स हाउ मेनी लो? ओके, ये आपका क्वेश्चन है. इन द रेफ्रिजरेटर देयर इज अ टेम्परेचर लो, and to such low temperature there is no growth of. Some freeze are maximizely having temperature. Yes, convertible freeze भी होते हैं. I want lower temperature in the freeze. Okay,
आपको रीड करना है लोअर टेम्परेचर कितना है. सो इन दिस लो टेम्परेचर there is no growth of microorganism. That's why food remain fresh. ओके, मैंने अभी भी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था. मैंने आज मैंगो जूस बनाया और ऊपर रख दिया. ओके, एंड 3 days के बाद वो मैंगो जूस मैं खा सकती हूँ, पी सकती हूँ? नहीं. बट वही मैंगो जूस मैंने फ्रीज में रख दिया तो क्या होगा? रिमेन प्रिजर्व. नहीं बेटा, थोड़ा सा चेंज है. डिफ्रीज, रेफ्रिजरेटर और फ्रीज का जो लोवेस्ट पार्ट एंड अपर पार्ट, इन दोनों के टेम्परेचर में चेंज है. ओके, देखो आप, फ्रीज में टेम्परेचर कितना होता है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कितना होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन दैट okay, so next one, that is placing the airtight container. Some food items are stored in the airtight container. So foodstuff are preserved in airtight container and the microorganism are first destroyed from that container, so that that food atom remain fresh and preserve. And can you tell me the example of ऐसे कौन से फूड आइटम है कि जो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं? गुलाब जामुन करते हैं क्या? रसगुल्ला करते हैं एयर टाइट कंटेनर में? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. ऐसे कौन से फूड आइटम है कि जो एयर टाइट कैन में, कंटेनर में स्टोर्ड करते हैं? सीरियल ऑल्सो गुड. ओके, पिकल ऑल्सो गुड. ओके, sugar. Okay, again, jam. Okay, okay, again. Okay, 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 okay. So that method of first method, that is the drying. Then second method is cooling. Third method is boiling. Then fourth method is, that is keeping the food atom in airtight can. Okay, आप देखो, हल्दीराम के रसगुल्ला का पैकेट आता है. पैकेट मीन्स एयर टाइट कंटेनर आता है. गुलाब जामुन का एयर टाइट कंटेनर आता है. देन कोको कोला के वगैरह भी कैन आते हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली सिंगल, सो मेनी थिंग्स. यस, ये जो चिप्स वगैरह के भी कैन टाइप में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आते हैं. सो मेनी थिंग्स वी आर storing in air tight container so that air does not enter. उसमें एयर एंटर ही नहीं होती है. ओके, सोडा ठीक है, इट्स ओके बेटा, मुझे नहीं पीता, मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं पता. एयर टाइट कंटेनर में बहुत से, यस, प्रिंगल्स. ओके ओके, बहुत से हैं एयर टाइट कंटेनर में. ओके, सो इन दैट व्हाई दे आर कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर? टू अवॉइड द एयर टू एंटर इन इट. उसमें एयर एंटर नहीं होनी चाहिए. यस, जूस के भी होते हैं. ओके, एयर एयर उसमें पास नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई दैट फूड एटम इज पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर. एंड बाय मिस्टेक एयर पास हो गई तो क्या होगा फूड एटम को? सपोज मेरे पास जूस है, उसमें एयर एंटर होगी, क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट केस? ओके, मेरे पास मैंगो जूस बनाया है, एयर पास हो गई, क्या होगा? सोडा है तो ब्रस्ट हो जाएगा. ओके, along with the air, some microorganism, yes, a microorganism enter in the food atom, and that food atom becomes spoiled, and that's why
एयर डज नॉट अलाउड इट टू पास देम. यस, जर्म्स एंटर हो जाएंगे. दैट्स व्हाई एयर डज नॉट अलाउड टू पास देम एंड दैट फूड एटम इज केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर. ओके, जो भी फूड एटम है उसको किसमें स्टोर करते हैं? दैट इज द एयर टाइट कंटेनर. ओके, नाउ इन द यस. ओके, शैडो माती को भी करते हैं, आई डोंट नो. ओके, so in the food atom there are different type of microorganisms are enter. So which are that microorganisms? Have you seen when you keep any chapati and then bread in the airtight container for 4-5 days? Okay, आपको कोई भी चपाती लेना है, ब्रेड लेना है, उसको एयरटाइट कंटेनर में पैक इसमें 4-5 डेज रखना है. एंड 4-5 डेज के बाद आपको ऑब्जर्व करना है चपाती को, ब्रेड को, क्या होता है उसके ऊपर. टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. कोई भी चपाती लेना है आपको, भाकरे लेना है, ब्रेड लेना है, उसको आप खुद करके देखो. ये भी आपको एक एक्टिविटी है. जैसे मैंने आपको बहुत सी साइंस की एक्टिविटी और भी बताने वाली हूँ. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरेस्टिंग साइंस एक्टिविटी फिर से सिखाने वाली हूँ. टुडे आई एम आउट ऑफ, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट मैंने आपको एक होमवर्क दिया है. क्या करना है आपको? चपाती, भाकरी नहीं तो ब्रेड एयर टाइट कंटेनर में 4-5 डेज. यस, निर्भय ने ट्राई किया है, वेरी गुड. तो उसको एयर टाइट कंटेनर में 4-5 डेज रख दो. एंड उसके बाद ऑब्जर्व करो वो जो चपाती, ब्रेड, भाकरी, ओके, देन जाम, जेलीज, पिकल, सबके ऊपर क्या ग्रो होता है? ब्लैक एंड ग्रीनिश कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जब 4-5 डेज के बाद आप वो ब्रेड बाहर निकालोगे तो आपको ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के कॉटन वूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. एंड दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फंगस. ओके, उस वो जो ब्रेड है, चपाती है, भाकरी है, उसके ऊपर, इवन जैम के ऊपर भी फंगस ग्रोथ होता है. पिकल्स, लोन्स के ऊपर भी फंगस ग्रोथ होता है. इवन क्लोथ्स के ऊपर भी होता है, शूज के, लेदर शूज, मेनी थिंग्स. बट हम फूड आइटम डिस्कस कर रहे हैं. सो फूड आइटम के ऊपर ब्लैक कलर का, ग्रीनिश कलर के फाइबर दिखते हैं, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं दैट ग्रोज. एंड दिस कॉटन लाइक फाइबर ग्रोथ ऑन द चपाती इज अ काइंड ऑफ फंगस. आपने स्कूल में ट्राई की है. वेरी गुड बेटा आरोही. यस, वी हैव फूड पॉइजनिंग, फूड वी हैव, ये जैसे फंगस ग्रोथ वाले फूड आइटम हमने खाए तो हमें फूड पॉइजनिंग, डायरिया, डिसेंट्री, स्टमक इन्फेक्शंस होता है. ओके, सो द कॉटन वूल लाइक फाइबर ग्रो ऑन द चपाती इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंगस. यस, मेनी मेनी फूड आइटम पे होता है फंगस ग्रोथ. ओके, मेनी फूड आइटम पे फंगस ग्रो होता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप होते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है. दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, 8 days, 9 days, 4 days, depend on the atmospheric condition also. प्रोटोजोआ, यस, वेरी गुड बेटा अथर्व, वेरी गुड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है. ओके, सो फंगस. ओके, सो दिस, ये जो फंगस है उसके क्या होते हैं? स्पोर्स. स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट in air and water. The chapati in the box created favorable condition for the growth of fungus. Then availability of food, water, air, warm temperature, fungus grow fastly. Okay, and this fungus spoil the food atom, and we have stomach ache, diarrhea, vomiting, food poisoning,
when we eat such type of spoil food, ओके यदि हमने वो स्पॉइल फूड खाया तो हमें क्या होता है, वी हैव स्टमक एक, प्रोटोजोआ है, यस वेरी गुड, वी हैव डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड आइटम इज वेरी वेरी लेस। ऐसे स्पॉइल फूड में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? नो, ओके देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन सच टाइप ऑफ स्पॉइल फूड। ऐसे स्पॉइल फूड में कौन सी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। okay? So this one is about the preservation of food. Again, there is a one method of preservation of food, that is adding the sugar. ऐसे कौन सी डिश है कि जिसमें मम्मी शुगर लगाती है एंड दैट फूड आइटम रिमेन फ्रेश फॉर मेनी डेज, मेनी मंथ? ऐसे कौन सी डिश आपकी मम्मी बनाती है? यस, वज्र ने तो एक आंसर दे दिया, वेरी गुड। शुगर, जिसमें मम्मी शुगर यूज करती है एंड दैट फूड आइटम रिमेन फ्रेश फॉर मेनी डेज मंथ। इमेजिन करो, गुलाब जाम इतने दिन स्टोर नहीं होता है ना अथर्व, गुलाब जाम इतने दिन स्टोर फ्रिज में रखोगे तो होता है। कोई तो फूड आइटम है कि जिसमें मम्मी शुगर लगाती है एंड दैट फूड आइटम रिमेन फ्रेश फॉर मेनी डेज। पिकल तो एक हो गया। फूड आइटम का नाम बताओ, जैजरी ठीक है, फूड आइटम का नाम। ऐसी कौन सी चीज है कि मम्मी उसमें सिर्फ मुरब्बा, वेरी गुड आंसर, ओके। आमला कैंडी, आमला कैंडी खाते हो? आपकी मम्मी ने बनाई है? बनाती होंगी, यस ना, मैक्सिमम बच्चों की मम्मी आमला कैंडी, नहीं तो बाहर से भी आप परचेस करते होंगे। आमला कैंडी में क्या यूज करते हैं? शुगर, क्या यूज करते हैं? यस ना, आमला कैंडी में क्या? बेटा मैं डिश का नाम पूछ रही हूँ, आमला जूस, आमला कैंडी। जूस तो भी कुछ दिन के बाद स्पॉइल हो सकता है, फ्रिज में रखा देन इट्स ओके। आमला कैंडी, आमला कैंडी खाते हो ना सब लोग, आवळ्याची गोड सुपारी, ओके, इन दैट योर मदर एड द शुगर, ओके। सो कोई कोई सब्सटेंस में उनको प्रिजर्व करने के लिए शुगर ऐड करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड कैंडिंग। और जो मेथड है ना उसको क्या बोलते हैं? कैंडिंग। नाउ यू हैव टू टेल मी द एग्जांपल ऑफ साल्ट। ऐसे कौन से फूड आइटम है कि जिसमें साल्ट ऐड करते हैं टू प्रिजर्व द फूड फॉर 1 year? ड्राइड अमला, ओके, ड्राइड अमला। अगेन, मम्मी कौन से इसमें साल्ट ऐड करती है कि जो सब्सटेंस कंप्लीट 1 year 2 year प्रिजर्व होता है? पिकल, वेरी गुड, पिकल, पिकल, ओके, उसमें मम्मी क्या ऐड करती हैं? साल्ट ऐड करती हैं। सो कोई कोई फूड आइटम में शुगर ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आमला कैंडी। यस, ड्राइड फिश ऑल्सो, यस बेटा, ड्राइड फिश को भी साल्ट लगाते हैं, पिकल में भी साल्ट यूज करते हैं। सो एडिंग द साल्ट, एडिंग द शुगर, दज आर ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। इसको भी क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, okay, it is also called method of preserving the food. So today I discussed the some method of preservation of food. I hope you understand that, okay? Is it okay, dear students? Hello, hello, are you able to listen my sound? Is it okay now? Now give me answer. You can unmute yourself. Unmute नहीं हो रही? Okay, 1 minute, I am trying. Okay, now, okay? Okay, so today I have discussed some method of preservation of food.
Okay, now try. Hello. Now try. No. Okay. No problem. Hello. Okay. So now I am ending today's class. Okay. Bye.